Yeah, okay. Hi. Today we are going to study about the last point of our first unit about the security type, and our last point is alternative securities, alternative investments, as a matter of fact. We have some type of alternative investment. First, I would like to ask, or just I will like to explain about what do you mean by the alternative investments. Okay, we have seen the equity securities, debt securities, and derivative securities. Okay, so these are some of the major securities or major investments which any investor do. But there is a fourth option also available. There is also option available for the uh, alternatives. So what do you mean by the alternative first? It's an investment in asset which are different from our stocks and bonds and derivatives. Okay, so different. So it can be a tangible assets. Tangible, what do you mean by tangible assets? Physical form assets which hold a value. For example, property, plant, equipment, land. Okay, or just take a example. Uh, I will say some metals. Yeah, means precious metals, uh, gold, copper, silver. Okay, so investments in tangible assets or other assets, financial assets like private equity, distressed securities, and hedge funds. Okay, so we are going to see this one by one. Okay, so alternative investment, I will say it could be a great addition. Okay, to your portfolio, investors portfolio, because many alternative investments provide a much higher returns than the traditional investments, mean stocks and bond. Just take an example of land. Normally when you buy a land, which we not a farm land, but just a bungalow plots, just construction land. So the prices of that land increases very, by higher rate. And I would like to give an example from my city as well. We have buy in 2013 one bungalow flat 1000 square foot by 1.5 lakh per 1000 square foot. So now the rate of that plot is 7 lakh, up to 7 lakh. So you can see there is a tremendous amount of 35% per year. There is a return. So it can be give you a much higher return than a traditional investment. Okay, and just an example of gold as well. You know what is the gold rate right now, which is much higher, all-time high. So what are the some features, or what make it different from the traditional investment? First, I will say this have a relatively low liquidity, because it's take time to sell the land or property or equipment or metal. Matter of fact, then it has a higher purchasing cost, because you can't derive the prices. Okay, as compared to equity and bonds, these prices of these investments are much higher. So this could also happen. So let's see what example we have in our syllabus. Okay, so these are some okay portfolio, traditional portfolio, and how we invest in other format. Just hedge funds are there, private equity, real estate, commodities, insurances, currency, structural products and derivative, and investments passion. So these are some of the types uh, of alternative investments. But I'm not going to teach you whole just like a syllabus, but will just uh, comment on these three which are on your screen right now: the private equity, real estate, and commodities. So, and these are much we can explain it. We have a lot of uh,
other data with this securities, but we are not going to go into the details. Just we will just go for the uh, main part which is required in your investment management subject. Okay, so what are the limitations, some of the alternative investment, that less regulation, less transparency, yeah, we can call it a less regulated, बिकॉज जब भी कोई ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट हम करते हैं टेंजिबल में या मेटल्स में, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं होता है। जो लैंड तुम लेते हो उसकी प्राइजेस कुछ फिक्स नहीं होती, जैसे इक्विटी या डेप्ट की ले लो, स्टैंडर्ड मतलब कितने भी बाहर आ जाए प्राइस नहीं बदलती। तो यहाँ पर ऐसे नहीं होता है। प्रॉपर्टी में जितने ज्यादा बायर आएंगे उतनी प्राइस उसकी शेक होगी, वोलेटाइल होगी। एक लिक्विडिटी के बारे में जैसे मैं बोला कि डिफिकल्ट होता है सेल करना ऐसे टेंजिबल प्रॉपर्टीज को, जल्दी नहीं बेच सकते। एंड डिफिकल्ट टू वैल्यू आल्सो, यू कांट, तुम मतलब नहीं, उसको आप लैंड की जो प्राइस है उसे मेजर नहीं कर सकते आप बराबर से, क्योंकि वो सेलर और बायर पे होता है। ओके, सेलर और बायर पे वो उनका नेगोशिएशन कहाँ तक जाकर रुकेगा, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइवेट इक्विटी? सो I will just explain in simple form, so you will understand this. When a new company, or just say when a new startup company take a place, so they want some money, so they offer some part or some ownership to one of the person। क्योंकि वो जो कंपनी है स्टार्टअप वाली, वो अब शेयर मार्केट में जाकर पैसा नहीं उठा सकती है, शेयर मार्केट में जाकर नहीं बोल सकती कि हमें पैसे दो, हमें शेयर अपने इशू करने। वो नई कंपनी है, वो नई कंपनी है, तो ये जरा मुश्किल होगा उनके लिए। तो वो क्या करेंगे, अगर उन्हें पैसे चाहिए तो वो किसी बायर के पास, किसी इन्वेस्टर के पास जाएंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल, जो वो मेरे पास आएंगे, आपने अगर कोई स्टार्टअप कंपनी खोली और आप मुझे कहेंगे कि हम आपको आधा अपना ओनरशिप देने के लिए तैयार है, तो आप हमें कैपिटल प्रोवाइड करो। तो इसका मतलब कि मैं उस कंपनी का 50% इक्विटी होल्डर बन गया। ओके, पर आप प्राइवेट इक्विटी क्यों कहेंगे? क्योंकि डायरेक्ट जो कंपनी के जो चलाने वाले लोग हैं, वो प्राइवेटली किसी के पास अप्रोच करते हैं, पर ऐसा शेयर मार्केट में नहीं होता है। आपको पता नहीं होता आपका बायर कौन है शेयर का, ठीक है, कोई भी हो सकता है। पर यहाँ पर क्या है, हम खुद अप्रोच करते हैं, हम खुद जाते हैं इन्वेस्टर के पास कि आप हमारे इसमें इक्विटी शेयर्स ले लो। तो ये प्राइवेट इक्विटी है, ठीक है, प्राइवेटली प्लेस इक्विटीज। और ये काफी रिस्की भी माना जाता है, क्योंकि आप एक नई कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका कोई कुछ रिकॉर्ड नहीं है, तो ये जरा मुश्किल हो जाता है, काफी रिस्की टाइप है। पर फिर भी इसमें कोई बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो होती है वो इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ अलग टाइप के प्राइवेट इक्विटी के भी टाइप्स होते हैं। ग्रोथ इक्विटी है, बाय आउट है। तो ग्रोथ इक्विटी में क्या होता है कि जो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो कि जिसका मॉडल जो है अच्छे से चल रहा है। जस्ट का एग्जांपल टिकटॉक ले लीजिए, पबजी ले लीजिए, ये जब नए नए चले अच्छे से, तो इसमें काफी पैसा आया था, ठीक है। तो ये ग्रोथ इक्विटी स्ट्रेटेजी है। उसके बाद बाय आउट भी होती है। ओके, कि किसी एक कंपनी को पूरा ओनरशिप ही चेंज करना है, मतलब वो कंपनी के जो अभी के मालिक है उनको वो कंपनी पूरी तरह से बेच देनी है। जस्ट एक एग्जांपल ऑफ फ्लिपकार्ट, जिस तरह से फ्लिपकार्ट को बेचा गया वॉलमार्ट को, तो वो एक बाय आउट स्ट्रैटेजी थी प्राइवेट इक्विटी की। और जिस तरह से मैंने कहा कि फ्लिपकार्ट ने खुद के शेयर्स नहीं इशू किए, उन्होंने डायरेक्ट कंपनियों को कांटेक्ट किया बड़े बड़े, तो वॉलमार्ट ने उन्हें खरीद लिया, ठीक है। तो और भी तीसरा टाइप होता है डिस्ट्रेस। ओके, it is that kind of debt which can be defaulted, okay, or on the verge of default। तो ऐसे भी हो सकता है कि ऐसी कोई कंपनी है जो पूरी तरह से डूबने वाली है,
तो आप ले सकते हैं, अगर आपको विश्वास होगा कि आप उसमें अच्छा कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं। एंड सेकेंडरीज कि मतलब खुद किसकी इक्विटी पार्टनरशिप, अगर मैंने कहा कि मेरी कुछ एक कंपनी में प्राइवेट इक्विटी है, पर मुझे अब रुकना नहीं है, मुझे पैसे चाहिए, तो मैं अमित के पास जाऊंगा और अमित को कहूंगा कि भाई मेरी इस कंपनी में इतनी इतनी प्राइवेट इक्विटी है, तुम मेरे से खरीद लो। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी में। ओके, तो ऐसे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा गेम होता है प्राइवेट इक्विटी का। इसमें ये ज्यादातर इसमें कंपनियां ही बढ़ती है, कोई इंडिविजुअल नहीं जाता, पहली बात तो। ठीक है, इसलिए आप इसको ऐसे इन जनरल आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, कर भी सकते स्मॉल स्केल पर। जैसे किसी के आपके गांव में किसी का दुकान खोलना है, होटल खोलना है, तो आप उसमें 50% पार्टनरशिप ले लो वगैरह वगैरह, तो उसे भी प्राइवेट इक्विटी ही कहेंगे हम। ठीक है, छोटे स्केल में। पर बड़े स्केल में ये कंपनियां ही करती है, कोई इंडिविजुअल तो करना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर, जस्ट मतलब कैसे काम करता है। और जब लेफ्ट में जो दिख रहे हैं आपको लिमिटेड पार्टनर्स, मतलब जो लोग इन्वेस्टर हैं, राइट में दिख रहा है वो कंपनियां हैं। अब होता कैसे कि हर कंपनी को पता नहीं होता किसके पास जाए, और हर इन्वेस्टर को पता नहीं होता कौन सी कंपनी अभी चल चल रही है। तो इसमें जो बीच वाला जो ब्रोकर आ जाएगा वो होता है प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। ओके, और रिमेंबर ये प्राइवेट इक्विटी फर्म्स इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो काम फिलहाल चल रहा है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ये काम जो करता है, ये बीच वाला जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको प्राइवेट इक्विटी फर्म, ये इन्वेस्टमेंट बैंक होता है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, ठीक है, कि आप इसलिए मैंने शायद अपने लेक्चर में बहुत बार आपको बताया है कि इन्वेस्टमेंट बैंक क्या काम करता है, बराबर है। आई थिंक मैंने बहुत बार बताया। तो इसलिए जब भी आप आगे जाकर, जब आप, मेरे ख्याल से आपको ये सवाल नहीं आएगा आपके मन में कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या है, बराबर है। यस गायत्री, मैंने बताया ना बहुत बार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के काम। हाँ सर। या तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट बैंक का ही काम होता है। अगर आप अ, अलग नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट बैंक कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ये इसका ही पार्ट है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का ही पार्ट है, पर हम उसे अलग नजर से देखते हैं, ये यही बात होती है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है कि किस तरह से ये फ्लो होगा पैसा वगैरह। इसमें प्राइवेट इक्विटी वालों को, जो बीच के ब्रोकर है, उनको दो टाइप की फीस मिलती है, फिक्स फी और इंसेंटिव फी। फिक्स फी मतलब ईयरली सब्सक्रिप्शन जैसा बोल लो, और इंसेंटिव मतलब अगर कोई डील करवा दी तो उसमें से कुछ पैसा निकल गया। और वो क्या पैसा मिलियंस में होता है, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको, छोटा नहीं होता, मिलियंस में पैसे होते हैं। ठीक है, तो अब जाएंगे हम डायरेक्टली रियल एस्टेट पे, 2 नंबर का। अब इसमें भी रियल एस्टेट में भी ये टाइप भी होते हैं कि आप क्या खरीद रहे हो। आप लैंड खरीद सकते हो, you can buy a home as well, and you can buy a कमर्शियल बिल्डिंग एज वेल। मतलब बिल्डिंग होती है ना जिसमें ऊपर फ्लैट्स होते हैं, नीचे दुकानें होती है, देखा होगा आपने, औरंगाबाद में भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स है। तो आपने वो भी खरीद लिया और रेंट पे चढ़ा दिया, तो ऐसी भी इन्वेस्टमेंट होती है। अब ये रहा कि रियल एस्टेट में कौन सी कंट्री कितना इन्वेस्ट करती है, मतलब इन्वेस्टर। आप देखो, सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में चलता है, भारत का तो यहाँ राइट साइड में देखो आप, 1.3% आपको दिख जाएगा कि जो इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट में वो बहुत कम होती है यहाँ पर भारत में, 1.3 के आसपास ही। तो हम यहाँ पर है, स्कोप है हमें। अब देखो, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर 3 टाइप के ले सकते हो आप। एक तो लैंड ले सकते हो, हाईली स्पेक्युलेटिव होना चाहिए ये सबसे बात, क्योंकि जब आप लैंड लेते हो तो आपको पैसा डेड हो जाता है आपका। क्योंकि लैंड मतलब क्या है, उसका कुछ आप यूज ही नहीं कर सकते, आपको रखनी पड़ती है, इसलिए वो डेड इन्वेस्टमेंट के जैसा है, होता है स्पेक्युलेटिव होता है वो, कि आगे जाकर यहाँ पर कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेते हो ना आप भी ऐसे, सुना होगा आपने जब किसी जमीन लेते हो कि भाई यहाँ पर आगे जाकर शहर बढ़ेगा, यहाँ पर भी सब एम्यूनिटीज आएगी, तो शहर के बाहर ऐसी जगह में मिल जाती है। दूसरा ऑफिसेस है, कि आपने कमर्शियल बिल्डिंग ले ली जिसमें सभी शॉप्स के लिए जगह दे दी, मॉल ले लीजिए जिससे मॉल होता है, उनको दे दिया। या फिर मल्टी फैमिली रेसिडेंशियल बिल्डिंग, म्हणजे
मतलब ले लीजिए कि जो फ्लैट्स है, अपने फ्लैट्स बना दिया, अपनी लैंड लिया और उस पर अपने एक फ्लैट्स अपार्टमेंट बना दिया और उसे बेचा या फिर रेंट पे दे दिया। उसके बाद रिटेल प्रॉपर्टीज भी होती है, शॉपिंग मॉल्स वगैरह जैसी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज भी होती है, मतलब आपने किसी गोडाउन वगैरह बना लिया और वो भाड़े पे चढ़ा दिया किसी कंपनी को। होटल्स हो सकते हैं, आपने होटल भी ले लिया, होटल में या फिर मेस के लिए दे दिया, यू नो। ऐसे भी दुकानें हो सकती है, या फिर स्टूडेंट्स हाउसिंग भी हो सकता है, पीजी भी हो सकता है। आई थिंक मेरे ख्याल से आप भी लोग रहते होंगे किसी भाड़े के यहाँ पर, बराबर, पीजी के रूप में औरंगाबाद में। तो वो भी क्या है, वो इन्वेस्टमेंट ही है ना, उस वो आपकी जो जो मालिक है आपका, वो ऐसे ही इन्वेस्ट, उसके इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि वो उससे आपको पैसा मिलते है, ठीक है, आप उसको रेंट देते हो, उसे उसका पैसा मिलता है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तो आप, ये तो हो गए रियल एस्टेट, मतलब अब आपने रियल इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसमें खरीद लिया। मगर ऐसी भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स है कि जिसमें आपको लैंड या कोई प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ वर्चुअल, मतलब ऐसी सिक्योरिटीज, एसेट बैक सिक्योरिटीज, मैं बोलूंगा यहाँ पर एसेट बैक सिक्योरिटी, जो रियल एस्टेट पे आधारित है, उस पर डिपेंड है, वो भी आपको मिलेंगे। तो पब्लिक मार्केट यहाँ पर आपको मिलेगा, REIT फंड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इक्विटी फंड्स और लिमिटेड पार्टनरशिप। तो ये भी आपको देखने को मिलेंगे, दो तीन। REIT का आप सर्च करो, इंडिया में ये काफी चलता है, REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये कैसे काम करते हैं कि एक मैंने जो सो मैंने एक REIT बना लिया मेरे नाम से, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं लैंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं ये बनाऊंगा, बिल्डिंग्स बनाऊंगा, आप मुझे पैसे दो। तो आप क्या करोगे, मुझे पैसे दोगे, और मैं उस ट्रस्ट के नाम से मैं जमीन खरीदूंगा, मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, सब करूंगा, और उसमें से जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से आप लोगों को कुछ ना कुछ शेयर्स डिविडेंड में आपको पे करूंगा, ठीक है। तो ऐसे इनडायरेक्टली भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप पर निर्भर करता है। और सबसे आखिर में है कमोडिटी, मतलब मेटल्स या फिर कुछ चीजें ले लीजिए, कमोडिटीज, एनर्जी प्रोडक्ट ले लीजिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ले लीजिए। और सबसे एक ये हमेशा ध्यान में रखिए, कमोडिटी ये अकेला ही ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि जो इन्फ्लेशन को मैच करता है बिना किसी शक के। ऐसा क्यों हो सकता है, मुझे कोई बताएगा? कमोडिटी कैसे मैच करेगा इन्फ्लेशन को, मतलब आंख बंद करके मैच कर देगा वो, क्यों भला, अमित? बिकॉज जो कमोडिटीज है वो भी क्या है, वो भी चीजें ही है ना, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में आप क्या क्या इस्तेमाल करते हो, मुझे बताओ। वो भी वही कमोडिटी, मतलब वही चीजें है। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब क्या है कि रोज रोज आप जो चीजें इस्तेमाल करते हो उनकी प्राइसेस बढ़ना। तो अगर उनकी प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियस है ये जो कमोडिटी आपने खरीदा है उसकी भी प्राइस बढ़ेगी। ओके, तो इसलिए यस सर। इसलिए इन्फ्लेशन जब बढ़ता है कमोडिटी की प्राइसेस भी बढ़ती ही है। तो इसलिए आप ये समझ लो कि कमोडिटी में इन्वेस्ट करना आपको काफी फायदेमंद रह सकता है, पर ये भी थोड़ा रिस्की टाइप ही हो जाता है। आपको नहीं पता होता है इन्फ्लेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, यू कैन से। इसमें भी बहुत ज्यादा स्टडी लगेगा। तो इसमें क्या एक्सपोजर मिलता है आपको, क्या क्या करोगे आप कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट? एक तो आप फिजिकल कमोडिटी खरीदोगे, मतलब आपने गोल्ड खरीद लिया, सिल्वर खरीद लिया, क्रूड ऑयल खरीद लिया फिजिकल फॉर्म में, मतलब एक्चुअल फॉर्म में। या फिर आपने क्या किया कि नेचुरल रिसोर्स या फिर कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स खरीदिए, मतलब मुझे क्रूड ऑयल पसंद है तो मैंने क्या किया, क्रूड ऑयल नहीं खरीदा, मैंने क्रूड ऑयल से रिलेटेड कोई कंपनी जो है, मतलब HPCL ले लो, ONGC ले लो, ठीक है, SR ले लो, इंटरनेशनल, काफी अच्छा नाम है उनका। तो मैंने इन कंपनियों के शेयर्स खरीद लिया। ये दूसरा तरीका है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट। और तीसरा तरीका है डेरिवेटिव्स, गोल्ड डेरिवेटिव्स है, क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स है, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव्स हमने पढ़े हैं कल परसों, कल पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। तो आप इनके डेरिवेटिव्स भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब तीन टाइप से कर सकते हो कि एक तो आप फिजिकल ले लो गोल्ड,
या आप गोल्ड वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, गोल्ड जो बनाती है या गोल्ड की ज्वेलरी बनाती है, या फिर आप डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। तो ऐसे आप ये कमोडिटीज को इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये पूरा जो था ये पूरा जो चैप्टर था जो मैंने अभी बोला, ये था पूरी तरह से अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स पे। ओके, तो यहाँ तक कोई किसी कोई सवाल है, यू कैन आस्क मी। यहाँ पर ये पहला यूनिट तो आपका खत्म हो गया न्यूज मैनेजमेंट का पूरा। यस, कोई क्वेश्चन?